إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادرانی ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی، پردہ نشین خواتین بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے جس رب عزی نے ہم سب کو اس مقام پر جمع کر کے ایک ملاقات اور چند باتیں سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میں اس بات سے آغاز کرتا ہوں، یہ علماء اکرام جو تشریف فرما ہے، یہاں بھی جمع غفیر میں یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، اور کمرے میں بھی جو ہے مولانا نذیر احمد صاحب، مفتی محمد عنایت اللہ قاسمی دامت برکاتہم شاہی امام جموں، جو ہمارے لیے بہت بڑے معزز ہے، تشریف فرما ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی ہوں گے۔ ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے، جو ایک عالم کی زیارت کرے گا 1500 اونٹ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صدقہ کرنے سے افضل ہے ایک عالم کی زیارت کرنا۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا: عالم واحد احد علی الشیطان بألف عابد۔ ایک فقیہ، ایک عالم، ایک حافظ، ایک صاحب قرآن، ایک صاحب علم، اللہ نے اس کو اتنا مقام دیا ہے، وہ شیطان پر اتنا بھاری ہے، شیطان اسے اتنا ڈرتا ہے، 1000 متقی عابد تہجد گزاروں سے زیادہ۔ اللہ کرے کہ ہمیں علماء اکرام کی زیارت نصیب ہو، اللہ کرے کہ ہم دل سے علماء اکرام کو چاہیں، دل سے چاہیں۔ جب ہم علماء اکرام کے ساتھ دل سے چاہیں گے تو، اور علماء کے اندر جو علم ہے، جو قرآن ہے، یقیناً ہمیں قرآن سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے، ابھی وہ زمانہ موجود ہے جس زمانے میں جس زمانے میں آپ زندہ ہے، حیات ہے، ایمان کے ساتھ حیات ہے، اور ہماری زندگیوں میں، ہمارے مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے الماریوں میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک زمانہ آئے گا، حضرت محدث ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ملفوظات کے اندر لکھتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا، قرآن کریم، اللہ رب العزت قرآن کریم کو آسمان پہ اٹھا لیں گے، اور لوگ دیکھنا چاہیں گے قرآن کو، اور جائیں گے، معنی بھی اٹھ جائیں گے، الفاظ بھی اٹھ جائیں گے۔ لوگ جائیں گے کہ میری کل الماری میں، میری شیلف کے اوپر قرآن پاک غلاف کے اندر ہے، ذرا اس کو میں دیکھوں۔ وہ دیکھا گا، وہ کوڑا کاغذ ہوگا، اس کے اندر جو حروف ہوں گے سارے کے سارے عرش پر پہنچ چکے ہوں گے۔ بد نصیب ہوگا وہ طبقہ جو طبقہ اس وقت دنیا میں موجود ہوگا۔ خوش نصیب ہے آپ لوگ، خوش نصیب ہے میری ماں بہنیں، بیٹیاں جو اس وقت موجود ہے، لیکن ان کے گھر میں قرآن موجود ہے، ان کے گھر میں امپارہ موجود ہے، اور یہ قرآن کو دیکھتے ہیں، اور یہ امپارے کو دیکھتے ہیں، اور یہ خوش نصیب طبقہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری موت اس حال میں آ جائے کہ ہم قرآن کی زیارت کرتے ہوئے جائیں۔ حضرت پیر صاحب فرماتے دو برکاتہ العالیہ، پہلے میں سفر میں تھا، کہیں سفر میں تھا، ایک لڑکی آئی، دوڑتی ہوئی ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی، وہ مجھے کہنے لگی، پیر صاحب کو، مراد پیر ذوالفقار ہے، آر یو مسلم؟
आर यू मुस्लिम? मैंने कहा यस आई एम मुस्लिम। कहा क्या आप मुसलमान हो? जनाब मैं मुसलमान हूं। हैव यू ए कुरान हिमसेल्फ? क्या तुम्हारे पास कुरान पाक है? पीर साहब ने कहा यस आई हैव कुरान इन माई पॉकेट, आई हैव कुरान इन माई पॉकेट। ताजुब करने लगी कि आपके पॉकेट में कुरान है? कुरान तो मैंने सुना बहुत बड़ा है, आपके जेब में पाक क्या कहते हैं कुरान पाक है? कहते हजरत पीर साहब बरकातुल्लाह या फरमाते कि मैंने कुरान पाक बाहर निकाला। उस लड़की ने वो कुरान पाक पकड़ा, कह रहे मैं बावजू हूं, और पकड़ के उसको छूमा और आंखों से मला। कहा कि मैं मुसलमान हूं और 39 साल मेरी उम्र है, उस रब्बे इज़्ज़ी की कसम है आज तक मैंने कुरान की ज़ियारत ही नहीं की है, आज तक मेरे महल्ले में कुरान ही नहीं आया है, आज तक मेरे घर में कुरान ही नहीं आया है, लेकिन मैं मुसलमान हूँ। खुशनसीब है ये तबका हाले वाला, खुशनसीब है ये तबका यहाँ के रहने वाले, खुशनसीब है ये नौजवान, ये बच्चे, खुशनसीब है ये बेटियां, खुशनसीब है ये बहनें जिनके घरों में कुरान है। ये कुरान का मौजूद होना ही खुशनसीबी की अलामत है। कुरान पाक का मौजूद होना ही खुशनसीबी की अलामत है, और कुरान का घर में मौजूद न होना बदबख्ती की अलामत है। बदनसीब है वो आदमी जिसके घर में कुरान पाक मौजूद नहीं है, खुशनसीब है वो आदमी जिसके घर में, मैं आपको बताऊंगा, आप बहुत ज्यादा रहते हैं हरमैन शरीफ है, अल्लाह ताला आपको ज़ियारत नसीब फरमाए। मैंने एक शेख से पूछा, मैं मस्जिद खैफ में गया, मैं सबसे, ये मौलवी जो तबका है सबसे गरीब आदमी हूं, सबसे गरीब आदमी हूं, लेकिन मेरे पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, वो क्या है, मुझे अपने माँ बाप की बड़ी दुआएं लगी है, मुझे अपने माँ बाप की बड़ी दुआ, और अल्लाह ने मेरे बाप की दुआ सुन ली है। और मेरे बाप ने एक जुमला कहा है, कहा गुल मोहम्मद मेशी खुदा इस मुंह उठा बस बस बेवन लड़के बुलाऊंगी, उसके बाद बहाना हो गया आपका दूसरे का, 16 उम्र थी एक। मैंने मस्जिद खैफ के अंदर एक से पूछा, मैंने कहा आप बताए कितने कुरान पाक यहां है मस्जिद के अंदर? कहने का अरब का दस्तूर है, अरब का दस्तूर है, याद रख लीजिए मेरी बात को, कि जितने नमाजी इस मस्जिद में आ सकते हैं, हुकूमत अरब ने उतने ही कुरान पाक का नजम यहाँ कर रखा है कि सारे लोग अगर तिलावत करेंगे, कोई भी आदमी कुरान से महरूम न रहे, हर आदमी को कुरान पाक मिल जाए। तो आपके घर में कितने बच्चे हैं और बहनें हैं, बहुएं हैं, मुझे गिन के बताए और कसम खा के बताए आपके घर में कितने कुरान पाक है। अगर 5 मेहमान आपके घर में आ गए तो बताओ आपके पास कुरान पाक है या नहीं है? यह कल पूछोगी आपसे, यह कल आपसे पूछोगी आपके घर में कितने अफराद है, कितने अफराद पर आपका कुंबा मुश्तमिल है, आपके घर में कितने कुरान पाक है। आपने कहा है ऐसा जो कुरान पाक ताकि गलत क्यों है, ताकि पे माउंट क्यों, एक कुरान पाक है मेरे घर में, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक कुरान है आपके घर में, 2 कुरान है आपके घर में, और 18 आदमी पर मुश्तमिल आपका कुंबा है, 16 आदमी पर मुश्तमिल आपका कुंबा है। मुझे एक मिसाल याद आई, फिर आगे चलूंगा अगर टाइम मिल गया, क्योंकि आप पीछे से भी उलमा इकराम बहुत आए हैं, वक्त भी कम है, मैं बीमार भी हूं। एक मिसाल में दूंगा पीर जुल्फकार साहब की। मैं कहीं पढ़ रहा था किताब में, वाशिंगटन के अंदर, अमेरिका के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला अमेरिका को हिदायत नसीब फरमाए, अमेरिकियों को हिदायत नसीब फरमाए। वो इस्लाम दुश्मन है। कहने एक गांव है, एक सिटी है, वहां पर एक डिबेट लगता है, वहां एक डिबेट लगता है, और हर मजहब वाला के लिए स्टेज बनाया जाता है, और स्टेज पे वो बोलता है अपने मजहब के बारे में। कहने ना वहां लोगों ने इस्लाम के पीर साहब को, हजरत महीने में एक बार होता है, आपका यहाँ क़ियाम 3-4 महीने है, तो आप बराह करम आप जो है मुसलमानों की क़ियादत कीजिए। वहां कोई मुसलमान होता ही नहीं है, और यहूदी, नसारा, फलानी, मजूसी, जितने मजहब वाले सब के लाते भी स्टेज पे कुर्सियां रखती हैं और अपनी बहस करते हैं, और कुरान वाला कोई नहीं होता वहां, ईमान वाला कोई नहीं होता है, मोहम्मद वाला कोई नहीं होता वहां। तो लिहाजा आप जहमत कीजिए और आप वहां तक तशरीफ ले जाए। कहना मैं मान गया, लेकिन मैंने कहा मुझे ये बलि का बकरा बना रहे हैं, पता नहीं वहां मारेंगे क्या करेंगे, भरोसा क्या उन लोगों का। कहने मैं स्टेज पे गया, मैं अपनी बात, सबने बात रखी, मैंने भी बात रखी। चलते चलते एक बार मैंने उनसे कहा
कहने का मेरी बात मानो। कहने का जनाब आप तो माशाल्लाह मेहमान हो, आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे। तमाम पादरी वादरी जो है सब ने कहा आपकी बात। कहने का आइंदा महीने में हर आदमी अपनी मजहबी किताब की तिलावत और तशरीह करेगा यहां, और इसके अलावा और कोई मौजू नहीं होगा। हर आदमी अपनी आसमानी किताब की तिलावत और तशरीह करेगा। यही आइंदा जो हमारा मौजू डिबेट में होगा। आया आइंदा महीना आया। तो इंशाल्लाह आवाज जाएगी, टेंशन नहीं ले। महीना आ गया, डिबेट शुरू हो गया। सारे लोग, पहले यहूदी की बारी आई। यहूदी जो है अंग्रेजी में पढ़ रहा है, स्पीच कर रहा है। हजरत पीर साहब ने उसको रोक लिया। ये राहिब आप क्या पढ़ रहे हो? ये मैं तौरात पढ़ रहा हूं। तौरात किस जुबान में है? यानी इब्रानी जुबान में। आप किस जुबान में पढ़ रहे हो? कहना अंग्रेजी, इब्रानी जुबान हमें आती नहीं है। मौलवी है, सबसे बड़ा मौलवी अपने मजहब का, सबसे बड़ा मौलवी है। मजहब की किताब उसको नहीं आती है, उस शक्ल में नहीं आती है जिस शक्ल में उसका नुज़ूल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान जिस शक्ल में नाज़िल हुआ, उस शक्ल में आज हाला में पढ़ाया जाता है। उस शक्ल में हाला के बच्चे और बच्चियां जो है पढ़ती है। उस अल्लाह का करम है, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है कि हम कुरान आज। तो हजरत पीर साहब ने फरमाया ना, ये नहीं चलेगा। पीर साहब ने फरमाया ये नहीं चलेगा, इब्रानी जुबान में सुनाओ। नहीं सुना पाया। दूसरे को कहा अपनी किताब अपनी उस शक्ल में सुनाओ, असली इबारत में सुनाओ। नहीं आई। बिलाखिर इनकी बारी आई पीर साहब की। पीर साहब ने कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इला गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पीर साहब ने कुरान की तिलावत की। पीर साहब ने कुरान की तिलावत करने के बाद सूरत की तशरीह की। सारे लोगों ने उंगलियां मुंह में डाल दी। क्या उन्हें डाले? क्या उन्हें डाले? कुरान पढ़ा गया। पादरी उठा। याद रखो ये बात मुझे कहेंगे, मुझे बात किसका सुनाना करोगे? जो पादरी ने कहा मुझे आपने सुनाना। पादरी ने कहा मौलवी साहब, बाई गॉड, खुदा की कसम, दुनिया के चप्पे चप्पे में घूमो, किसी मजहब वाले के पास किताब भी आई नहीं भी शक्ल उसी शक्ल में मौजूद नहीं है। अगर है तो रामबंद हाला के मुसलमानों के पास वो कुरान जो मेरे नबी पर नाज़िल हुआ उसी शक्ल में मौजूद है। कहा कुरान के अलावा दुनिया में कोई किताब अपनी असली शक्ल और सूरत में मौजूद नहीं है। सारा बिगड़ चुका है। जब किताब बिगड़ जाती है तो मजहब बिगड़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र है उस बारी ताला का। आज पादरियों ने एतराफ कर लिया, राहिबों ने एतराफ कर लिया कि कुरान के अलावा कोई किताब दुनिया में अपनी असली शक्ल में, अपनी असली सूरत में मौजूद है। तो इस पर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इस पर मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। रब्बा, तूने जो किताब मुहम्मद रसूल फरमाई जिब्राइल के जरिए से, और जिसमें सहाबा हाफिज हुए, जिस तरह से सहाबा पढ़ रहा था उसी तरह से आज हाला का तालिब इल्म पढ़ रहा है। ये अल्लाह का फजल, अल्लाह की इनायत नहीं तो और क्या है? ये अल्लाह का फजल नहीं तो और क्या है? ये अल्लाह का फजल है या नहीं है? ये अल्लाह का फजल है या नहीं? रिवायत के अंदर आता है कुरान वो आदमी नहीं पढ़ सकता है जो जिसकी बदबख्ती की अलामत, जिसके अंदर बदबख्ती की अलामत पाई जाती है। तिरमिज़ी के अंदर रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बदबख्ती की अलामत में से चंद अलामतें गिनी गई है, मुझे इतनी याद नहीं है। पहली अलामत
جو قرآن اس کے نزدیک نہیں جاتا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اور جس کی آنکھ سوکھی پڑی ہے، جس کی زمین میں بارش نہیں ہوئی، کیا ادھر کچھ اگے گا؟ جس زمین میں بارش نہیں ادھر کچھ اگے گا؟ جس آنکھ میں آنسو نہیں اس آنکھ پر کچھ نہیں ہوگا۔ کہتا ہے جس کی آنکھ سوکھ چکی ہے۔ اور میں دیکھے اللہ کرے کہ آپ کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہو۔ اللہ سب مولوی کو، سب ان لوگوں کو جو ہے تو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب حرم کا امام وہ آیات قرآن پڑھتا ہے جو عذاب کے کبیر سے ہے، جس میں عذاب لکھا ہوا ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے یہ بتلایا گیا ہے اگر تم نحوست تمہارے اندر پائے گی یہ عذاب ہوگا۔ امام حرم اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے نماز کے اندر کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، اور یہ پہچان اس بات کی ہے وہ کامل ایمان والا ہے، وہ کامل مومن ہے، اس لیے کہ اس کو عذاب والی آیات کو پڑھ کر اتنا آنسو آتا ہے، اتنا آنسو، کیونکہ اس کی آنکھ سوکھی نہیں پڑی ہے۔ یہاں لوگوں کے سامنے کتنا ہم کیا بولے، ہمارے سامنے لوگ کتنا بولتے ہیں، ہمارے آنسو تک نہیں آتے ہیں۔ خدا کی قسم ایک زمانہ تھا، حضرت عبدالحق محدث دہلوی اپنی ملفوظات کے اندر فرماتے جس جگہ میں جاتا ہوں، جس حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے جس جگہ میں جاتا ہوں اللہ اللہ، دو الفاظ کہتا ہوں، سارے لوگ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر خوف خدا موجود ہے، اور جس کی وجہ سے جب وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو اندر جو آنکھوں میں آنسو بھرا ہوا تھا وہ باہر نکل آتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میری آنکھ بھی ایسی بن جائے، اللہ کرے کہ میری آنکھ بھی ایسی بن جائے کہ اس میں خوب آنسو آ جائے، اور آنسو بہے کہاں؟ وہ آنسو جو خدا کے خوف سے چیونٹی کے سر کے برابر بھی اگر آنکھ سے ظاہر ہو گیا اور زمین پہ ٹپک گیا، سینے پہ ٹپک گیا، خدا کی قسم، میرا نبی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اس آنسو سے دوزخ کی آگ بھسم ہو جائے گی، بجھ جائے گی۔ کتنا قیمتی ہے میرے اور آپ کا آنسو، کتنا قیمتی ہے میرے اور آپ کا آنسو۔ آنسو کب پیدا ہوگا؟ جب ہم قرآن کے ساتھ محبت اور عشق کریں گے، جب قرآن کے ساتھ ہم محبت اور عشق کریں گے۔ پرانے زمانے کے اندر مجھے ابھی یاد ہے، میری والدہ اللہ تعالیٰ کو غریب رحمت فرمائے، جب اس دوست میں جگہ نصیب فرمائے، جب وہ آٹا چھانتی تھی، جب وہ آٹا بھونتی تھی، جب آٹا چھانتی تھی، نکالتی تھی برتن سے آٹا، بسم اللہ بسم اللہ۔ میرے دوست تھا، جمنا کنارے پہ اڑاتا تھا، میں مظفر نگر کے اندر پڑھا کرتا تھا، یہ 1978 کی بات ہے۔ میں کبھی کبھی اس کے گھر میں جایا کرتا تھا، میں چھوٹا تھا اس وقت، داڑھی تو تھی، پردے کا کوئی لحاظ نہیں تھا اس وقت۔ میں اس کے چولہے کے قریب بیٹھتا تھا، اس کی ممی بظاہر ایسی ہی لگتی تھی، بظاہر کوئی تب کچھ نہیں، کوئی لباس نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور جب وہ گیہوں کی روٹی پکاتی تھی، جب وہ گندم کی روٹی پکاتی تھی تو پکاتے پکاتے میں اسے کہتا لڑکے سے، دوست سے، میں نے کہا آپ کی ماں کیا پڑھتی رہتی ہے؟ ایسے کر آواز کبھی باہر نکلتی تھی، لیکن میں نہیں سمجھتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا امی جان تو بتا تو کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے جب تک میں صبح کے ناشتہ تیار کرتے ہوں اس وقت تک میں ایک پارہ قرآن پڑھ لیتی ہوں۔ کتنا پڑھتی ہوں؟ کیا ہوا ہمارے مسلمان کو جس کے سینے میں قرآن ہی نہیں ہے؟ کہنے ایک سپارہ قرآن زبانی پڑھ لیتی ہوں جب تک میں ناشتہ کرتا ہوں۔ بتاؤ اس ناشتے کے اندر کتنی قوت ہوگی ماشاءاللہ، جو ناشتہ کرنے والے ہوں گے کتنے نمازی بنیں گے، کتنے تہجد گزار بنیں گے۔ ہم گھر میں بھی ایسا کھانا ملے تو ہم بعض مرتبہ جب ہم بے نمازیوں کا کھانا کھاتے ہیں، ظاہر تو ہے بے نمازیوں کا پکا ہوا کھانا کھاتے ہیں اور تہجد بھی سے بھی ہم محروم ہو جاتے ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ اور جب ہم پاک دمن خواتین کی پکائی ہوئی روٹی کھاتے ہیں، جو نمازی ہے، جو دیندار ہے، جن خواتین کے اندر خوف خدا ہے، خدا کی قسم ان کی پکائی ہوئی روزی کے اندر جب ہم کھاتے ہیں اور تہجد سے آدھا گھنٹہ ہمیں نیند نہیں آتی ہے،
करोटे चेंज करनी पड़ती है। हम कहते हैं ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। देखते हैं कि तहज्जुद करीब आ रहा है। हाथ खड़ा करो आप में से, कौन बुजुर्ग है जो ये कहता है कि मैं तहज्जुद पढ़ने वाला हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको तौफीक देगा, हमेशा तहज्जुद गुजार बनेगा। हाथ खड़ा करो। है कोई आप में से? हदीस पाक के अंदर आता है, अगर तुम चाहते हो कल क़यामत में तुम्हारा चेहरा नूरानी हो जाए तो तुम सुबह की वो नमाज पढ़ो जिस वक्त सारे लोग सोए होते हैं, और उलमा ने उसकी तशरीह की, वो तहज्जुद की नमाज है। अल्लाह करे कि हम तहज्जुद नमाज पढ़ने वाले सारे बन जाए, तहज्जुद नमाज पढ़े। और जिसका जो आदी बन गया तहज्जुद नमाज का, खुदा की कसम दुनिया में भी उसका चेहरा नूरानी होगा, मौत के वक्त भी उसका चेहरा नूरानी होगा। और जो लोगों को धोखा देगा, तहज्जुद नहीं पढ़ेगा, नमाजें नहीं पढ़ेगा, और मरने से पहले उसको एक अजाब होगा, वो अजाब क्या, उसका चेहरा काला हो जाएगा। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे। और याद रख लीजिए, एक जुमला मैंने पहले बताया था कि अगर आप किसी आलिम की ज़ियारत करेंगे कि ये मेरा नबी का वारिस है, ये मेरे नबी का वारिस है। आपका मामू है बड़ा प्यारा, आपका मामू बड़ा प्यारा है। जब मामू का बेटा मिल गया था उसको गले मिलते हो, आप गले मिलते हो, क्यों? हाँ, वो क्या बताऊं, ये पूरे मेरा भाई मेरा है, मेरे मामू का लड़का है। और मजनू से, लैला से पूछ, मजनू से पूछ तू इस पत्थर में क्या कर रहा था? वो पत्थर को चिमेट रहा था। कहने का क्यों हुआ, क्या था, पागल हो गया तू? ये पत्थर है, उसको चूम रहा है, उसको सर मार रहा है उसके ऊपर। लोगों ने कहा मजनू हुआ क्या, है ही तो तू मजनू। कहने लगा मैं इस पत्थर को नहीं चूमता, मैं इस पत्थर को इसलिए चूमता हूं और इसको इसलिए करने मिलता हूं, इसके ऊपर लैला बेचती है, मुझे मोहब्बत लैला से है, इसलिए लैला की जगह बेचती है, उस जगह से भी मुझे मोहब्बत है। और जिसकी सीने में कुरान है, आपको उसके साथ मोहब्बत नहीं हो, फिर क्या हो? वो हमें इंशाअल्लाह ताला साहिब कुरान से, जिनके अंदर कुरान है, जिनके सीनों में कुरान है, हदीस पाक के अंदर आता है। और मेरे पीर मुर्शिद हजरत अल्लामा अब्दुल गनी अज़हरी अलैहि रहमत फरमाया करते थे, जो उलमा की हुफाज की तौहीन करता है, जो उलमा की, और इसको हजरत नानोती रहमतुल्लाह अलैह मलफूजात के अंदर लिखा है, जो उलमा की हुफाज की, कारियों की, इन साहिबी इल्म वालों की तौहीन करता है, कहते इन तुम इनकी बिकई ये मुझे कोई रोजी पासन के, कहते कब्र में देखो दूसरे दिन, आज शाम को मरेगा, कल कब्र में देखो उसका चेहरा किबले से फेर दिया जाएगा। कहता कोई इस लायक नहीं है कि तेरा चेहरा किबले की तरफ है, क्योंकि तूने उन उलमा की शान में गुस्ताखी की है जो मेरे नबी के वरसा है, वारिस है, जो कुरान के वारिस है। तो खुशनसीब है ये लोग, आप लोग खुशनसीब है, आप लोग, आपके सामने ये हुफाज है, आपके सामने ये उलमा है, आपके सामने उलमा की जमात है, बार बार आती है। और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो आदमी मैं कभी कभी कहता हूं, लोग कहते हैं अच्छा जी मौलवी साहब पागल हो गया। मैं कहता हूं जो उलमा के साथ जब तुम्हें मुलाकात करनी है, सलाम करनी है, बावजूद मुलाकात क्या करो, बावजूद कुछ तो हासिल होगा। बेगुस्सा तुम मुलाकात करते हो उलमा से, बेवजू तुम उलमा से मुलाकात करते हो। हदीस पाक के अंदर आता है, जो बावजू रहता है उसको सकरातुल मौत आसान होगी। क्या पता आपको मौत कब आएगी। ये सब हमेशा चुप नाक के बगैर हमेशा बावजू रहा करो, हाथ खड़े करो मेरे सामने। कौन आदि बनेगा आज के बाद इंशाअल्लाह, घास काटेगा वुजू होगा, गोली करेगा वुजू होगा, और उलमा के साथ मुलाकात करेगा तो बावजू होगा, उलमा के साथ वुजू करेगा तो बावजू होगा। हजरत एक शख्स था, मैंने अभी मलफूजात के अंदर पढ़ा था, ये किताब के अंदर पढ़ा था, हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, बादशाह के बाग में नौकर गुलाम था, बादशाह के बाग में गुलाम था, बादशाह नौकर था, चौकीदार था। बादशाह आया, उसने कहा भाई 3 साल तुझे हो। कहने बादशाह ने कहा जो मेरे बाग में सबसे मीठा फल हो वो मुझे टोकरी में लाके दे, मैं खाऊंगा। किसने कहा? मालिक ने। बाग के मालिक ने कहा नौकर से, तुझे 3 साल हो गए ड्यूटी देते हुए यहाँ, तू अच्छा सा सबसे अच्छा फल ला और मैं खाऊंगा। उसने लाया वो भी खटा, फिर लाया वो भी खटा, फिर लाया वो भी खटा। उसने कहा क्या कर रहा है तू क्या कर रहा है? तूने बाग में 3 साल गुजारे और तुझे ये पता नहीं चला, जजमेंट नहीं हो रही है कि भाई कौन सा किस दरख्त का फल जो है मीठा है, किसका खटा है। कहले हजरत
3 साल हुए मुझे, मैंने किसी दरख्त का कोई फल चखा ही नहीं है, क्योंकि मैं अमीन था, मैं अमानतदार था, मैं चौकीदार था, मैं जो है खयानत करता तो खुदा की लानत आती। मैंने किसी दरख्त का फल आज तक नहीं खाया। अल्लाह बादशाह, तू इतना परहेजगार कि दरख्त की बाग का 3 साल का तू चौकीदार, और 3 साल तक तुझे बाग का फल भी नहीं चखा। मैं जा, इसी बात पर मैं तुझे आजाद कर देता हूं। गुलाम था, आजाद कर दिया। और पहला इनाम, दूसरा इनाम मेरी लड़की है, उसका नाम फातिमा है, उसका निकाह तेरे साथ कर देता हूं, उसके साथ ये उसका निकाह तेरे साथ कर देता हूं। ये पाक दामन आदमी और बादशाह की पाक दामन बेटी, दोनों का निकाह हो गया। साहिबी कुरान दोनों थे, दोनों के सीने में कुरान था, नौबत तो था ही। अल्लाह ताला ने उनसे एक ऐसी औलाद पैदा फरमाई जो कायनात में उस जमाने का सबसे बड़ा मुहद्दिस था, सबसे बड़ा मुफक्की था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह अगर आज भी हाजी साहब से ही हो जाए, हाजी साहब की बीवी से ही हो जाए, और दोनों नमाजी बन जाएंगे, दोनों खयानत नहीं करेंगे, खुदा की कसम आज भी वो औलाद पैदा हो जाएंगे जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुहक्किक और मुहद्दिस बनेंगे। मैं अपना कोई मेरा मैं आखिर में बताऊं, मैं आपको बात खत्म कर रहा हूं। मेरा भी कोई कमाल नहीं है, मेरा भी कोई जो कुछ सीखा मैंने, मेरा भी कमाल नहीं है, मेरा भी कमाल नहीं है। अल्लाह ने मुझे खानदानी मौलवी बनाए। मेरा परदादा सियालकोट का पड़ा हुआ था, हाफिज हुसैन साहब यहाँ मौजूद है, ये तारीफ करेंगे इस बात की। मेरा परदादा सियालकोट का पड़ा हुआ था, उस वक्त की कदूरी उसके पास मौजूद थी। और एक जगह जब झगड़ा हुआ, एक माइट को जब घर से निकालना था तो आपस में झगड़ा हो गया बरादरी में। हमें कहा कि भाई सार की जानिब से बाहर निकालेंगे और पाँव की जानिब से बाहर निकालेंगे। तो उस जमाने का मैं पढ़ा हुआ नहीं था, मेरे वालिद साहब के वो अल्फाज जो बाद में मुझे याद आए, और उस कदूरी में अल्फाज लिखे हुए, वयुक़द्दिमुर रास, जिसको अल्लाह हिदायत करता है कुरान की, इंशाअल्लाह ताला उसको उसके माँ बाप भी नेक बनते हैं, उसका खानदान भी नेक हो जाता है। मैं बात को शायद आप खत्म करना चाहूंगा। बज़ाहिर मैं बीमार हूं, हकीकत में मैं बीमार हूं। बड़े बड़े उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, ये भी समझे कि कम से कम अभी बुड्ढा भी बोलता है, इतना तो समझेंगे कि जब बुड्ढा इतना बोलता है तो हमको कितना बोलना चाहिए। उनको पता चलेगा बुड्ढा आदमी, मेरी उम्र अब 60 पहुंच चुकी है, अप्रैल में अब 61 साल जा रहा है मैं, और ऊपर से मुझे बीमारी ने भी सताया है। एक जुमला कह के जाऊंगा, कुछ जहन में आ गया, बस उसी बात को खत्म करूंगा। मौलवी की लाइन कभी खत्म तो होगी है। बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहां पैदा हुए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहां पैदा हुए? बुत बनाने तराशने वाले के घर में। क्या नहीं बोल दिया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहां पैदा हुए? या आबादी, ए मेरे बाप, आप क्यों इबादत करते हो उसकी बात ये सो रहा है, आप उसकी इबादत क्यों करते हैं? जो कुछ नहीं बोलता है, नहीं सुनता है, नहीं कुछ करता है, क्यों इबादत करता है उसकी? प्यार से बोला, रहम से बोला। मैंने हुफाज से कहता हूं, तुम्हारे माँ बाप अगर पढ़े हुए नहीं, उनको प्यार से कहा, अम्मी तुझे कुरान याद नहीं है, तुझे नमाज याद नहीं है, तुझे अतहियात याद नहीं है, तुझे सूरह फातिहा याद नहीं है, तुझे कुल वला याद नहीं है, प्यार से इसको याद करवाओ, प्यार से याद करवाओ। अगर मान जाती है तो इंशाअल्लाह बाप को भी प्यार से याद कराओ। ए बुजुर्गों, मैं आपसे बता वसीयत करके जाता हूं, दूसरी बार हम आओ ना, मैं आओ या ना आओ, कम से कम 10 सूरतें तो याद कर लो, बच्चों से 10 सूरतें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, आप उस चीज को क्यों जो है उस चीज को इबादत क्यों करते हैं जो नहीं सुन सकता है, न देख सकता है, न मुआवनत कर सकता है, न नुकसान दे सकता है, न फायदा दे सकता है। बड़े प्यार से कहा, बड़े प्यार से कहा। लेकिन काफिर क्या करेगा? लेकिन काफिर क्या करेगा? वो अपनी जहालत ही बर्पा करेगा। और बाप ने कहा
बाप ने कहा लार्जुमन्नकुम वहजुर्नी मरिया, कुरान बताता है ए बेटो अगर तूने दोबारा मुझे नसीहत करना चाही, लार्जुमन्नकुम तुमको संसार कर दूंगा और तुमको भगा दूंगा यहाँ से और तुमको मलामत कर दूंगा और कौम को बताऊंगा ये मौलवी चोर है, ये मौलवी चोर है। आजकल जब मौलवी के खिलाफ कुछ प्रोपगंडा नहीं बनता तो कुछ न कुछ लगा देते, कहता आपको पता नहीं इन्हें क्या ओ मौलवी साहब जिसके पीछे अपना माफ करते। वो टीवी पे मैं देखा एक औरत से बात कर रहा था, हालांकि वो उसकी बीवी होगी या बहन होगी, लेकिन चूंकि उसके दिल में खटक रहा मौलवी, इसलिए उसे वो तीर मारना शुरू कर दिया। इब्राहिम साहब ने कहा तुझको नहीं छोड़ूंगा, या तो तुझको संसार कर दूंगा। क्यों? वो जाहिल था, वो गंवार था, वो बुतराश था, वो मुशरिक था। मुशरिक यही कहता है लार्जुमन्नकुम वह, और तुझको यहाँ से भगा दूंगा और तुझको यहाँ जो है तेरी बेइज्जती करवा दूंगा। मुसलमानों, जब तक हम आपस में मोहब्बत तकसीम करेंगे, मोहब्बत, सियासत वाले कहते हैं कि आप मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, ये तो मोहब्बत की दुकान मेरी और आपकी मेरे नबी ने खुलवाई। अखलाक की, मोहब्बत की, प्यार की दुकान तो मेरे नबी ने। और रिवायत के अंदर आता है, तबलीग वालों से कहता हूँ, अल्लाह वालों से कहता हूँ, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले उसकी हालत चेंज होनी चाहिए क्या? या वो हंसे या मुस्कुराए? क्या वो खुश हो जाए कि ईमान वाले से मेरी मुलाकात होगी? अरे अल्लाह शुक्र है तेरा, ईमान वाले से मेरी आज मुलाकात होगी। मेरे दफ्तर के सामने दो तबलीग वाले गुजरे, एक तबलीग वाला सीढ़ी पर था, एक तबलीग वाला ऊपर से आया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज ये दोनों को बुलाऊंगा और कुछ नसीहत करूंगा। एक ने गर्दन उधर मोड़ दी, दूसरे ने गर्दन इधर मोड़, आपस में मुलाकात की। ये तबलीग है क्या? ये तबलीग है क्या? एक तबलीग वाला सीढ़ी से चढ़ रहा है, दूसरा उतर रहा है, एक ने कमर उधर कर दी, दूसरे ने इधर कर दी, सीधा उतर गया, आपस में सलाम तक नहीं किया। ये तबलीग है? ये तबलीग है क्या? ये नफरत की बात, ये नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है। इसको तबलीग नहीं कहते हैं, इसको तफरीक कहते हैं। तबलीग वाले नहीं जाओ, जब किसी मुसलमान को, किसी रेश वाले को, किसी नमाजी को, किसी कलमा गए को देखोगे, अगर हंसोगे नहीं, हसद की वजह से कम से कम मुस्कुराओ, इतना भी खुश तो हो जाओ। वो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वो कहेगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने के साथ अमल की तौफीक दे, उमा तौफीक। बहुत सी बातें ज्यादा होगी क्योंकि उलमाए किराम के सामने इतनी गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए थी और ऊपर से बीमार भी हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने के साथ अमल की तौफीक दे। और उलमा एक मैंने आपको पहले बताया था, अबू दाऊद की रिवायत मैंने आपको बताई थी, एक आलिम की ज़ियारत करना, नकद 1500 ऊंट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने से बेहतर है कि आप एक आलिम की, जितने भी आलिम है सबकी जब आप ज़ियारत करोगे इंशाअल्लाह ताला यहाँ से कुछ पाके जाओगे। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कम से कम 5 वक्त नमाज न छोड़ो किसी भी हाल में। वह तो भीगी इल्ला बिल्लाह।